A very good morning to one and all present today. I, Ritika Bora, Assistant Professor, DME Media School, welcome Mr. Indish Patra, freelance cinematographer formerly associated with Discovery National Geographic and also works as guest faculty at various colleges. I also welcome Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, all faculty members and students of Media School. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to all our participants and guests. Delhi Metropolitan Education, DME, is an A grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, approved by Bar Council of India. The institute offers courses like BBA, BA LLB, BBA LLB, and BJMC. DME believes in imparting world class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges in the industry and creating space for themselves with the competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and student through academic and co-curricular activity. Session orientation program is being conducted by Media School every year for third and fifth semester student. We invite experts from the industry to speak on the topic related to the curriculum of BJMC and give students insight into the media industry. In the same context, we have invited Mr. Indish Patra, Director of Photography and Cinematographer. He is currently working as freelancer Director of Photography and Cinematographer and is associated as guest faculty in various mass communication colleges in Delhi and NCR. Previously, he has been associated with channels such as NewsX, Z Telefilms, Discovery, and National Geographic. He has worked as director of photography in 11 films, out of which one was even awarded with National Award. We are glad to have him with us today. Before I hand over the stage to Mr. Indish Patra, I would request Dean DME Media School, Professor Dr. Amrish Saxena, to please come and kindly give the opening remarks. So it's a matter of great pride that Mr. Indish Batra is with us today. Because when we talk about a video or the visual medium, I think there can be nothing more important than the camera. Though in the production there are different compartments, each compartment is important, but then camera is actually the thing, is the instrument through which everything is captured. And the kind of distinctions that Mr. Batra has achieved is really remarkable, and simply his presence is enough for anybody who want to make a career in production and particularly in camera. The kind of experience that he has and the work that he has done, because I was listening to him, his stories, how he has done many such stories which are unthinkable. So if you are a cameraman, then the kind of passion that's required, I think that
passion that Mr. Indish Batra has will be transferred to many of you today. And I believe that will be the success of today's session. So without wasting any further time, we would like to devote more and more time to Mr. Indish Batra and to listen to him. And you all are blessed that you will be able to learn the tricks of the trade in this session today. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to request Amrish sir and Susmita ma'am to please come here, and Indish sir, and I would like to ask Shalu to please felicitate sir and ma'am. Sir, just a Hi everyone, good morning. Okay. Good morning. Sir, you may take the mic. I don't think I need a mic. Recording के लिए label लगा हुआ है. And I'm pretty loud that way, okay? So everyone can hear me out, okay? So first of all, I'm sorry, I am not मतलब मैं कैमरा ज़रूर करता हूँ, लेकिन कैमरा के लिए मैं कैमरा के सामने मेरे को आदत नहीं है, तो मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? मेरा काम है कैमरा के पीछे रहने का. पिछले लगभग 27 सालों से कैमरा के पीछे ही हूँ, ठीक है? पिछले 27 सालों में मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर मैंने कुछ कमाया है जीवन में, तो वो कमाए हैं अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द मनी, ओके? पैसा तो हर कमाता, हर कोई कमाता है, लेकिन अगर कुछ कमाया है तो वो मैंने कमाया है जीवन के अपने एक्सपीरियंसेस, और कुछ गंवाया है तो वो अपने बाल, ठीक है? नाउ ऑन अ लाइटर मोड आई वांट टू आस्क यू, सबसे पहले कि मेरे को ये बताइए कि आप में से सभी लोग में सबसे पहले डायरेक्शन में कौन कौन इंटरेस्टेड है, हाथ उठाइए. डायरेक्शन, रेज योर हैंड प्रॉपरली, रेज योर हैंड्स. Okay, hands down. Camera. Direction में भी हो, कैमरा में भी हो. Very nice. Hands down. Editing. बेटा तू तो तीनों में सबसे पहले, okay, hands down. सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, सबने घोड़ा देखा, घोड़ा, हॉर्स, राइट? हॉर्स को ब्लाइंड फोल्ड किया होता है ऐसे करके, राइट? कोई मुझे कारण बता सकता है कि ब्लाइंड फोल्ड हॉर्स को क्यों किया जाता है? ब्लाइंड फोल्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि कि वो सिर्फ जो उसका जो राइडर है वो सिर्फ उसके कमांड को समझे, वो अपने फोकस को इधर राइट लेफ्ट ना देख के बिल्कुल सीधा देखे. उसको राइट की कमांड मिले वो राइट जाए, लेफ्ट की कमांड मिले लेफ्ट जाए. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ का बेसिक बता देता हूँ कि बॉस अपना फोकस हॉर्स की तरह सबसे पहले विजन को क्लियर करिए. मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन. डू नॉट बी master of all and jack of none. Jack of something, right? When मैं भी तुम्हारी तरह कभी आज से 27 साल पहले कभी मैं भी स्टूडेंट था. माँ के पेट से तो कोई भी पैदा नहीं होता है सीखता हुआ, ठीक है? सीखा हुआ, मैं भी सीखा ही हूँ. लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने तीनों जगह पे हाथ खड़ा किया कि जी एडिटिंग भी करनी है, कैमरा भी करना है, डायरेक्शन भी करनी है, मेरे दोस्त होगा, सब कुछ होगा, लेकिन समय के साथ. एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज, ठीक है, आप सभी लोग के बराबर के मेरी बेटियां हैं. आई हैव 2 daughters, ठीक है? माई सेकेंड, द एल्डर वन, जो बड़ी बेटी है वो 2nd ईयर में है, ठीक है? और
मेरी छोटी बेटी 12th में है और मैं सर के रूम में बैठा हुआ एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि मेरी छोटी बेटी को 10th से ही उसका फोकस क्लियर था कि पापा मुझे ये करना है। बड़ी बेटी का भी 11th में तक आते आते उसका फोकस क्लियर हो गया था कि पापा मुझे ये करना है। तो अपने फोकस को मत चेंज होने दीजिए, ठीक है। शुरुआती दौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको जहाँ पे भी यहाँ से कॉलेज से जब आप निकलेंगे, पास आउट होंगे, आपको मौके मिलेंगे न्यूज़ चैनल में। अच्छा मेरे को ये बताइए कि सबसे पहले देखिए, दिल्ली इंडस्ट्री इज़ फेमस फॉर डॉक्यूमेंट्रीज एंड फॉर न्यूज़, राइट। बॉम्बे इज़ फेमस फॉर योर फिक्शन, फीचर फिल्म्स, सिनेमा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि कितने लोग दिल्ली से रिलेटेड इंडस्ट्री विच इज़ न्यूज़ एंड जर्नलिज्म, कितने लोग न्यूज़ एंड जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है? मोस्ट ऑफ देम, ओके, हैंड्स डाउन। सिनेमा में कौन कौन? फिल्म के अंदर कौन कौन इंटरेस्टेड है? इसमें भी डबलिंग है, इसमें भी डबलिंग हो रही है। देखो, दो अलग अलग रास्ते हैं, एक पूरब और एक पश्चिम है। जो अगर फिक्शन करना चाहता है, फीचर फिल्म करना चाहता है, सिनेमा करना चाहता है, उसका दिल्ली में कोई काम नहीं है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड ब्लंट विद यू। मैं आपके सामने इंडस्ट्री का वो पिक्चर दिखाने के लिए, मैं आपको यहाँ पे सब्ज बाग कहते हैं ना, सब्ज बाग, झूठे सपने, मैं आपको झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम गोना टेल यू द रियलिटी ऑफ द हार्ड कोर इंडस्ट्री जो फील्ड में चल रहा है। अगर आप दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में मेरा देखिए, आप पूछेंगे कि मैं बॉम्बे, हालांकि मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ, मैं महीने में 10 दिन बॉम्बे ही रहता हूँ, ठीक है, लेकिन काम के लिए जाता हूँ। मैंने अपना बेस दिल्ली रखा, उसके पीछे कारण है। आप मेरे से पूछेंगे कि आप बॉम्बे क्यों नहीं है, आप बॉम्बे में क्यों नहीं है? मेरे मतलब आधी इंडस्ट्री मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ कोर्स भी किया, वो बॉम्बे में है, लेकिन मैं दिल्ली में क्यों? मेरा ये मानना था कि एक बॉम्बे इज़ लाइक अ बड़ा देश, एक बड़े देश का छोटा सा मंत्री बनना या एक छोटे देश का राजा बनना, ये आपके ऊपर है। मेरा डिसीजन था कि मैं छोटे देश का राजा बनना पसंद करूंगा रादर देन बड़े देश का एक छोटा सा मंत्री। And by the grace of God, staying in Delhi, I got a chance because I am a person who loves, मैंने सब कुछ शूटिंग किया है, मैंने फिक्शन किया है, मैंने सिनेमा भी किया है, फीचर फिल्म भी किया है। फाइनली मैंने अपने आप को आज 25-27 सालों के बाद में नैरो डाउन कर लिया है। विशाल सर को मैं अभी यही एग्जैक्टली बता रहा था कि नाउ अगले 10 साल, आई एम 50 राइट नाउ, अगले 10 साल तक मुझे इंटरनेशनल लेवल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स करनी है। दैट्स माय फोकस, विजन क्लियर, ठीक है। तो और ये विजन मेरे को आज का क्लियरिटी नहीं है, पिछले 15 साल से मैं डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए, डिस्कवरी के लिए, BBC के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मुझे डॉक्यू ही करना है। मैंने न्यूज़ चैनल में भी काम किया, 5-6 साल मैंने न्यूज़ चैनल में भी काम किया, मुझे मज़ा नहीं आया। वो एक दो जाके इंटरव्यू, जाके पॉलिटिशियंस के पीछे घूमना और वो इंटरव्यू लेना, मुझे नहीं समझ आया। वो देयर वाज नो क्रिएटिविटी, देयर वाज नो क्रिएटिविटी। पॉलिटिशियन के पीछे भागना, पॉलिटिशियन के सर एक इंटरव्यू दे दो, सर बता दो सर क्या, आई डोंट लाइक दैट। तो वो हर किसी का अपना चॉइस होता है कि कौन क्या करना चाहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जर्नलिज्म में पावर नहीं है, न्यूज़ में पावर नहीं है। आज की डेट में एक जर्नलिस्ट के पास इतना एक्सेस है कि वो डायरेक्टली, मोटा भाई हमारे, ठीक है, मोदी जी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सबके पास एक्सेस है आपका। आप जाइए रक्षा मंत्रालय, आप अपना कार्ड निकालिए, PIB कार्ड, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कार्ड, सरकारी कार्ड होता है। PIB कार्ड आप अपना निकालिए, दिखाइए, आपको कोई भी मंत्रालय के अंदर, मतलब एक अच्छे से अच्छा बंदा जिसके पास करोड़ों रुपया है, इवन फॉर दैट मैटर अडानी, अंबानी, वो भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते
इन मिनिस्ट्रीज के अंदर एक जर्नलिस्ट ले सकता है. दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ जर्नलिज्म. Okay, when you are talking about masses, we all of you, including me, हम लोग क्या हैं, हम लोग किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? मास कम्युनिकेशन. किससे बिलोंग करते हैं? कम्युनिकेशन. अपने आप को जितना आउटस्पोकन बना सकते हो बनाओ, चाहे फीचर फिल्म करोगे, चाहे जो मर्जी करोगे. आउटस्पोकन, यू नीड टू कम्युनिकेट. अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, मैं 50 लोगों को ही अगर कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मासिस को कहाँ से करूँगा? आई एम टॉकिंग अबाउट 135-40 करोड़. आई थिंक 140 करोड़ हो चुकी है भारत की जनसंख्या, राइट? 140 लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ. मैं अगर आप ही लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, आप ही लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो मैं दुनिया को क्या बताऊँगा? बी वेरी क्लियर in your whatever you want to say. ठीक है? I do not want that आप में से कोई भी बच्चा बाहर निकले और 4 साल के बाद, 3 साल के बाद में हमारे साथ हुआ था. मैंने कोर्स किया था, मैंने जब कोर्स किया था, आप बिलीव करोगे, विशाल सर को शायद याद होगा, हमारे साथ एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे. अब हम तो सब बच्चे थे उस टाइम में, छोटे, और वो कर्नल साहब बड़ी मूंछें लेके अपना कर्नल लेके बैठे हुए वहाँ पे अपने कर्नल की पोस्ट लेके. अब हम उनके सामने बच्चे से लगते थे. तो एक दिन हमने हिम्मत करके उन कर्नल साहब से पूछ लिया, मैं कर्नल साहब एक बार बताइए कि आप हम छोटे बच्चों के बीच में, आप इतनी उम्र के, कम से कम ही मस्ट बी अराउंड 45, प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके इंडियन आर्मी से, और वो हमारी क्लास में आके बैठा करते थे और क्लास लिया करते थे. भारतीय विद्या भवन की बात बता रहा हूँ मैं आपको. तो मैंने उनसे एक बार हमने हिम्मत करके कैंटीन में उनसे जाके पूछ लिया, मैं सर आप बताइए कि आप क्यों, वाई यू हैव बीन सर्विंग इंडियन आर्मी, वाई यू हैव कम हियर? ही सेड कि यार मेरा पिताजी जो है ना, वो चाहते तो थे कि मैं हमेशा शूटिंग करूँ, उनके डैडी भी आर्मी में थे. कह रहे लेकिन मेरे को बंदूक चलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कैमरा चलाना अच्छा लगता है. शूटिंग तो शूटिंग ही है ना, चाहे वो शूटिंग इस कैमरा से हो चाहे बंदूक से हो. ठीक है, तो शूटिंग ही है. ही सेड कि मेरे को फाइनली मैंने एक दिन रियलाइज कर लिया कि मुझे आर्मी में नहीं रहना. वो रिटायरमेंट ले लिया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, और शायद वो कहीं मेरे जीवन पे भी अप्लाई होता है. माई फादर इज ऑल्सो एक्स आर्मी. ठीक है, मेजर जनरल रह चुके हैं मेरे डैडी, और वो भी चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं. मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, और मैं वही हूं जहां मैं होना चाहता था. तो अपना फोकस को, विजन को क्लियर रखें. ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपके फ्यूचर के बारे में. नाउ व्हेन we say that the today's topic is understanding the basic of camera and light and sound. Okay, now coming back to the main subject now. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैमरा में सबके पास किस के पास DSLR है? DSLR कैमरा किस के पास है? हाथ उठाइए. खाली एक के पास. वेरी बैड. 2. That's 3. Okay, that's bad, that's sad. I'll tell you why. अपने चाहे कोई एक अच्छा डायरेक्टर बनना चाहे कोई अच्छा एडिटर बनना चाहे, आपको बेसिक कैमरा का नॉलेज होना चाहिए. आई एम सॉरी, आप लोग लाखों रुपए लगा के इंस्टीट्यूट में आए हैं, आपके माँ बाप ने खर्चा किया है, यहाँ पे लाखों रुपए आपने लगाए हैं. एटलीस्ट अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर 25-30 हज़ार रुपये और लगाइए, और सभी लोग एक बेसिक DSLR कैमरा खरीदिए. DSLR का बेसिक आज की डेट में सोनी का कैमरा A73, सोनी A73 इज़ अराउंड, आई थिंक बॉडी है उसका शायद 70-80 हज़ार रुपये का, और एक अच्छा बेसिक लेंस अगर आप 30-40 हज़ार रुपये का, तो एक 1.25 लाख रुपये का कैमरा आता है.
अगर उतना भी कचरा नहीं कर सकते हो तो कैनन पे आ जाओ, कैनन और सस्ता है, बट बाय अ DSLR. DSLR will give you clarity in photography. और सबसे बड़ी बात, जब आप DSLR को समझ जाओगे ना, DSLR को, तो आपको फिर ये जो पहला शब्द है ना कैमरा, इसको समझने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कि कैमरा हैज मल्टीपल थिंग्स. इट हैज एक्सपोजर, इट हैज अपर्चर, इट हैज शटर स्पीड. अब अगर मैं आपको ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी बताऊं कि कैमरा, शटर स्पीड, तो जो लोग DSLR नहीं जानते तो वो कहेंगे यार व्हाट इज शटर, व्हाट इज द यूजेज ऑफ शटर, व्हाट इज द यूजेज ऑफ अपर्चर, व्हाट इज द यूजेज ऑफ ISO. ISO किसको पता है? किसी को पता है ISO? सबको पता है, ISO पता है. तो यानी बेसिक फंडे सबके क्लियर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है. बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज होना एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल होना एक अलग चीज़ है. जब आप अपने आप की अपनी खुद की पिक्चर को क्लिक करेंगे, आप अपनी पिक्चर के खुद क्रिटिक बनेंगे. आप आज की डेट में यार देखो, स्मार्टफोन हर किसी के पास है, ठीक है, और इसमें लिखा होता है आजकल जितने भी नए नए कैमरा, मेरे को भी कैमरा फ़ोन चेंज करना है. आजकल कैमरा पे, मोबाइल कैमरा पे आजकल एक होड़ चली हुई है, 50 मेगापिक्सल, 70 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, राइट. ऐड देखते होगे आप लोग टीवी पे. आपने कैमरा ले लिया 100 मेगापिक्सल, जबकि कि ये कैमरा भी 100 मेगापिक्सल नहीं है, एंड इट्स अ ब्रॉडकास्ट कैमरा. कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो आप? सोनी. कौन सा है? NX5. NX5 आई थिंक 4K नहीं है, राइट? फुल HD है ना ये? फुल HD है, ओके. सो मैं होड़ में चला जाऊं, अगर फोटोग्राफर बनना है तो हर स्टूडेंट आज की डेट में, आई एम वेरी श्योर, सबके पास स्मार्टफोन होंगे. सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है. तो इस हिसाब से तो 100 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल के लिए तो सारे फोटोग्राफर हैं, फिर तो सारे फोटोग्राफर हैं. तो आप में और मुझ में फर्क क्या है? एक्सपीरियंस तो है ही है मेरे दोस्त. द कैमरा, I do not trust on this camera. You know why? Now, सबसे पहले आ जाते हैं, what is sensor? सबसे पहले मुझे एक बताओ कि ये जो कैमरा है, इस कैमरा में सबसे आगे लेंस लगा हुआ है. आपके सामने यहाँ पे लेंस लगा हुआ है. लेंस के पीछे यहाँ पे, इस जगह पे क्या लगा है? नो. नेक्स्ट, what is right behind the lens which is converting the light energy into the electrical energy and getting it saved on the card? What? The sensor. The sensor. Right behind the lens, ठीक है, is the इस वाले कैमरा में मैं लेंस निकाल के आपको दिखा नहीं सकता हूँ, अदरवाइज डिटैचेबल लेंस होता तो आई वुड हैव शोन यू द सेंसर. ठीक है, आई एम श्योर आपके पास जो स्टूडियो में मल्टी कैमरा सेटअप हैं, उसमें आप अगर लेंस को निकालेंगे तो आपको एक शीशे का एक सेंसर दिखेगा. ठीक है, तो उस सेंसर में जितना बड़ा सेंसर उतनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी. ठीक है, और प्रोसेस, उसके पीछे होता है प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है. ठीक है, और प्रोसेसर प्रोसेसिंग करके मेमोरी कार्ड में इमेज को सेव करता है. ठीक है, पहले ज़माने में जब मैंने शुरू किया था उस टाइम में, आजकल तो मेमोरी कार्ड के कैमराज आ गए, सभी में मेमोरी कार्ड है. हमारे टाइम में तो फिल्म चला करती थी. कितने लोगों ने फिल्म कैमरा देखा है फोटोग्राफी वाला, जिसमें 36 फोटोग्राफी होती थी, 36 वो शॉट होते थे? सभी ने देखा लगभग. हाँ, तो हमें डर लगता था यार 15 पिक्चर हो गई, 16 पिक्चर हो गई, बचा के रखो, फिल्म ख़त्म होने वाली है. आज की डेट में वो लिमिटेशन नहीं है डिजिटल आने के बाद. ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है. हर चीज़ का सिक्के के दो पहलू होते हैं. डिजिटल में भी अच्छाई भी है, बुराई भी है. डिजिटल में अच्छाई ये है, देन स्काई इज़ द लिमिट, आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन डिजिटल का ड्रॉबैक क्या है? वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. वी हैव स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड. अरे यार डिजिटल है, पोस्ट में ठीक कर लेंगे. दैट्स द बिगेस्ट एंड द, I think the strongest point of negative of digital. मेरे को एक बार किसी आर्टिस्ट ने बोला कि यार हम आर्टिस्ट का चेहरा
हेयर स्टाइलिस्ट था नहीं हमारे पास। तो हेयर स्टाइलिस्ट को मैंने बोला, मैं कहा मेकअप ठीक नहीं है, हेयर ठीक नहीं है। तो प्रोड्यूसर ने मेरे को आगे क्या जवाब दिया, बोले सर कोई बात नहीं, हम पोस्ट में ठीक कर लेंगे। अरे यार तुम मेकअप को कैसे ठीक करोगे, हेयर को कैसे ठीक करोगे? एक लड़की के बाल अगर घुंघराले हैं, मैं उसको स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकता पोस्ट प्रोडक्शन में। तो ये एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि जी डिजिटल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नो, गेट एवरीथिंग करेक्ट एट द सोर्स। व्हाट इज द सोर्स? द सोर्स इज द कैमरा। और जो हम शूट करते हैं, जो डेटा शूट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फुटेज, राइट? तो गेट योर फुटेज राइट एट द लोकेशन। डू नॉट थिंक यार ये तो पोस्ट में कर लेंगे, डिजिटल है, कंप्यूटर पे कर लेंगे, एफसीपी पे कर लेंगे या प्रीमियर पे कर लेंगे या जो भी व्हाटएवर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल एवर डू विद योर लाइफ, द बिगेस्ट कॉम्प्रोमाइज यू विल डू विद योर लाइफ। सो नेवर अंडर एस्टिमेट कि जी यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे हम, ठीक है? अब सपोज मेरा ऑडियो है, नेक्स्ट आ जाता ऑडियो। हम लोग कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री। व्हाट इज इट? ऑडियो विजुअल। ऑडियो में, ऑडियो विजुअल में ऑडियो पहले आता है, एवी ऑडियो पहले आता है, वीडियो बाद में आता है। अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं है, स्केच बोर्ड नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव shown you how the data is getting recorded in a memory card in terms of video के जो डेटा होता है और जो इसका ऑडियो का डेटा होता है वो कैसे रिकॉर्ड होता है, वो मैं आपको, बोर्ड होता तो मैं आपको समझा देता, बट एनीवेज। तो टेप ज़माने से लेके आज तक हमारे कैमरा में 2 चैनल ब्रॉडकास्ट, एनी ब्रॉडकास्ट कैमरा हैज़ 2 चैनल्स। पता है सबको? ऑडियो 1, ऑडियो 2, चैनल 1, चैनल 2, पता है? हाँ या ना? तो चैनल 1 को हमेशा से ऑडियो में एक थंब रूल बना के रखिए। जब भी आप कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आपके पास एक कैमरामैन है और आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एडिटर, channel 1 is always dedicated for natural sound या फिर nat sound कहते हैं, ambient sound कहते हैं उसे, ठीक है? channel 1 is always dead unless and until आप 2 माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो channel 1 में आपने एक माइक डाल दिया, channel 2 में आपने दूसरा माइक डाल दिया। I hope you are using channel 1 as a ambience, right? So channel 1 is generally dedicated for ambient sound। बिकॉज मैं जब भी एक कुछ भी फिल्म कर रहा हूँ, उस जगह की, इस जगह की भी अगर मैं साइलेंट भी हो जाऊँ ना, तब भी यहाँ पे लाइटों की हमिंग साउंड है। शांति से सुनिए, यहाँ की जब सब शांत हैं तब भी यहाँ की एक पर्टिकुलर साउंड है, इस स्टूडियो की भी, लाइट्स की, एसी की, ठीक है? तो दैट्स कॉल्ड एम्बियंट साउंड। एम्बियंट साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी, झरना, झाड़ू, कोई झाड़ू लगा रही है, आप कुछ भी, कोई कुछ, एनीथिंग, एवरीथिंग हैज ऑडियो फर्स्ट एंड वीडियो लेटर। तो ऑडियो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ऑडियो हमेशा चैनल 1 पे हमेशा ऑडियो रखिए, और चैनल 2 पे आप अपना जो भी मेन वॉइस ओवर रखना चाहते हैं, इंटरव्यू रखना चाहते हैं, जो भी मेन ऑडियो रखना चाहते हैं, आप चैनल 2 को उसके लिए डेडिकेट करिए, ठीक है? ये बेसिक थंब रूल, ठीक है? अब आ जाता है कि कैमरा में, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैमरा में, इस कैमरा में और उस कैमरा में, मैंने एक तो आपको बता दिया सेंसर का फ़र्क, ठीक है? अब मैं सेंसर जब बोलता हूं तो सेंसर के साइज में व्हाट इज फुल फ्रेम? व्हाट इज फुल फ्रेम? फुल फ्रेम मतलब कितने mm का सेंसर? बताइए, एनीबडी? फुल फ्रेम, किसी ने नाम सुना फुल फ्रेम? नहीं सुना? सेंसर का जो साइज है, जो वो
स्क्वायर जो लेंस के ठीक पीछे है उसको सेंसर कहते हैं। उसका एक पर्टिकुलर एक साइज होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, चकोर साइज का होता है। 35 mm डायगनली 35 mm इज कॉल्ड फुल फ्रेम, ठीक है, डायगनली। अब ये जैसे ये आपका एलईडी टीवी है, ये एलईडी टीवी है, ठीक है। अब ये सपोज ये 32 इंच का है, ठीक है। अब ये 32 इंच के अलावा क्या इससे बड़ा नहीं आता? आता है, 62 भी आता है, 52 भी आता है। इमेज आपको सबसे ज़्यादा कितने, मतलब इतना छोटा टीवी भी आता है और इतने बड़े भी आते हैं। फ़र्क क्या है? एक तो पैसे का फ़र्क है और दूसरा क्वालिटी। नाउ व्हेन आई से क्वालिटी, सबसे पहले क्वालिटी में मैं बात करता हूँ। आज की डेट में बेसिक मिनिमम हर कैमरा में, इंक्लूडिंग द मोबाइल कैमरा, फुल एचडी तो आता ही आता है हर कैमरा। फुल एचडी की रेजोल्यूशन क्या होती है? 1920 बाय 1080, ठीक है, दैट्स फुल एचडी। अब अगर मैं इसको राउंड फिगर में, इसको 1920 बाय 1080 को, अगर 1920 ऑलमोस्ट 1920 को अगर मैं लगा के चलता हूँ, ऑलमोस्ट 2000 हो गया, राइट? ऑलमोस्ट 2000। तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम खड़े हैं आज, जिस टेक्नोलॉजी के मोड़ पे हम खड़े हैं, वी हैव कैमराज विच इज इवन 12K। तो अभी मैं अगर 1920 1080 को मैं बोलता हूँ 2K कैमरा, ओके, 2K, K मतलब 1000, ओके। तो मेरे पास आज की डेट में जो सिनेमा कैमरा है वो 12K है। 12K कैमरा कौन कौन से हैं? एरी एलेक्सा, रेड कैम, ये दो कंपनीज हैं, और एक है एक सेकेंड नाम, ब्लैक मैजिक ने अपने अभी 10K कैमरा लॉन्च किया है, ठीक है। सो 10K 12K बेसिक, आज की डेट में बेसिक सिनेमा फिल्म इज शॉट ऑन 8K मिनिमम 8000 लाइन्स। अब ये जब मैं K बोलता हूँ, नो 2000 1920 1080, ये 1920 1080 है क्या? नहीं, पिक्सल नहीं है, ये हैं स्कैनिंग लाइंस। अब स्कैनिंग लाइन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। इस टीवी के लेफ्ट से शुरू करिए, ठीक है, यहां से स्कैनिंग लाइंस ऐसे चलती हैं, राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां से स्कैनिंग लाइन शुरू होती हैं, ऐसे चलना शुरू होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। जितनी ज़्यादा स्कैनिंग लाइंस उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन। और अब स्कैनिंग लाइन का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एक स्कैनिंग लाइन के अंदर विशाल, आई नीड अ बोर्ड या, हाउ डू आई एक्सप्लेन द पिक्सल्स, हाउ डू आई राइट पिक्सल्स। एक स्कैनिंग लाइन के अंदर एक, समझ लीजिए, एक डॉट होता है, उस डॉट के अंदर 3 डॉट होते हैं, उसको कहते हैं, एक डॉट को कहते हैं पिक्सल, और वो जो 3 डॉट उसके अंदर होते हैं वो होते हैं RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो एक स्कैनिंग लाइन के अंदर लगभग 1,00,000 पिक्सल्स होते हैं, 1,00,000, ठीक है। और हर 1,00,000 पिक्सल के अंदर 3 डॉट्स होते हैं, यानी कि 3,00,000 हो गए आपके RGB। अब सोचिए कि स्कैनिंग लाइंस, जब मैं 2000 बात कर रहा हूं तो मतलब 2000 स्कैनिंग लाइंस, 1920 1080 मतलब 1920 ऐसे, 1920 ऐसे चौड़ाई में, 1080 ऐसे, क्योंकि ये जगह कम है, ठीक है। तो ऐसे 1080, ऐसे 1920 रेजोल्यूशन लाइंस, या सो जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं,
ये परमानेंट मार्कर तो नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड है ना, ठीक है। सो जैसे मैं आपको बताया, ये स्क्रीन है, यहां से ऐसे स्कैनिंग लाइंस निकलेंगी, ये ठीक है। और जो इन स्कैनिंग लाइंस के ऊपर ऐसे, दिस इज कॉल्ड पिक्सल, एंड इसमें RGB, ठीक है। ये इनके अंदर ऐसे एक लाइन के अंदर 1 लाख होते हैं, ठीक है। तो नाउ अगर मैं 1920 1080 बोल रहा हूं तो मतलब 2K। अब 2K को अगर आप 4K करेंगे तो 4000, 8K करेंगे तो 8000, और 10K करेंगे, 12K करेंगे तो सिमिलरली स्कैनिंग लाइंस बढ़ती जाएंगी। क्या बढ़ेगा? स्कैनिंग लाइंस बढ़ेंगी। अब स्कैनिंग लाइंस में इतना सारा डेटा, जब मैं बात करता हूं 8000 10,000 स्कैनिंग लाइंस, और सेंसर होगा मेरा ये, क्या ये इतना, इसमें बाय द वे जो 35 mm होता है, 35 mm इज फुल फ्रेम, फुल फ्रेम। इसके बाद इसके नीचे आता है 1 इंच, और 1 इंच के बाद ½ इंच, क्वार्टर इंच, 1/4, 1/8। तो आपके सबके मोबाइल के अंदर खाली एक आईफोन, जो अभी आईफोन का कौन सा नया मॉडल आया है, वो लेटेस्ट जो 1.5 लाख रुपए का आया है, हैं 15 या 14 जो भी है, मैं आईफोन यूज़ नहीं करता इसलिए मुझे पता नहीं है। तो उसका कहते हैं कि 1/4 सेंसर है, उसका सेंसर साइज इज 1/4। अदरवाइज आप सभी के जितने 90% लोगों के पास जो एंड्रॉयड हैं फ़ोन, उसमें 1/8 मतलब 1 इंच का 8वां हिस्सा साइज का सेंसर लगा हुआ है। ये 1 इंच है, 1 इंच का भी 8वां हिस्सा, इतना छुट्टू सा सेंसर है, इतना चुटकू सा। अब इतने छुटकू सेंसर में कंपनी वाले क्लेम करते हैं हम आपको 50 मेगापिक्सल 70 मेगापिक्सल। आप एक्चुअली कभी भी अगर उसको, आप वीडियो को आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद में राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद एक्चुअली कभी ये टेक्निकली करके देखिए, क्या जो कंपनी क्लेम कर रही है वो उतने मेगापिक्सल आ रहा है फ़ोटो या वीडियो? नहीं आता सर, नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट अ ब्रॉडकास्ट कैमरा, भाई रेट में भी फ़र्क है। अब ये वाला कैमरा 2 लाख रुपए का है, और ये है 15,000 16,000 का। तो 16,000 और 1.5 लाख रुपए के कैमरे में फ़र्क क्या है? किसी ने सोचा है क्या फ़र्क है? सेंसर, सेंसर। सो फुल फ्रेम जब 35 mm का इतना चौड़ा सेंसर होगा, इतना चौड़ा, ठीक है, इतना चौड़ा सेंसर होगा जब आपके पास, जितना ज़्यादा, अब वही वाली बात है। अब एक सपोज एक बंदे की हाइट है 6 फुट, ठीक है, एक लड़के एक लड़की की हाइट है 6 फुट, मैंने उसको 6.5 फुट का बेड दे दिया सोने के लिए, वो कैसे सोएगा? ख्याल के सोएगा, चौड़े होके सोएगा। अब उसको मैंने 5 फुट का बेड दे दिया, कैसे सोएगा? सुकड़ के। अब मैंने उसको और छोटा कर दिया, मैंने उसको 4 फुट का बेड दे दिया सोने के लिए। अब बताओ वो कैसे सोएगा? वो सो पाएगा ही नहीं, वो बेचारा कुकड़ू बन के वैसे ही बस वो फोल्ड करेगा अपने आप को। He'll try to adjust. So the same funda applies when it comes to sensor. जितना बड़ा बेड उतना ज़्यादा कंफर्टेबल योर डेटा विल बी। मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। आपका डेटा जितना आप उसको अनकम्प्रेस्ड रखेंगे, जितना ज़्यादा स्पेस में रखेंगे। नाउ व्हेन आई कॉल अनकम्प्रेस्ड, व्हाट इज अनकम्प्रेस्ड एंड कंप्रेस्ड?
भाई हमने अपने ह्यूमन के बारे में तो बात कर लिया कि कंप्रेस हो गया कि मैंने 6 फुट के बंदे को 3 फुट में सुला रहा हूँ, दैट्स कंप्रेशन, ठीक है। अनकंप्रेस्ड मैंने उसको 6.5 फुट का बेड दे दिया, ये तो ह्यूमन लैंग्वेज में हो गया। अब डेटा में बात करते हैं। डेटा में व्हाट इज कंप्रेशन एंड अनकंप्रेशन, टेल मी, हाउ डू यू जस्टिफाई कि डेटा हमारा कंप्रेस्ड रिकॉर्ड हो रहा है या अनकंप्रेस्ड? आप बताइए, आप कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, कितने एमबीपीएस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी बताइए? 1080 is a resolution line. 1920, 1080 is the resolution lines which you are recording. What is the compression ratio which you are recording right now? You don't know. लिखा हुआ है उस पर, मैं बता के देख के बताता हूँ। 50 एमबीपीएस, 50 1920 1080 के आगे लिखा हुआ है 50, वो 50 क्या है? कंप्रेशन, दैट्स कंप्रेशन रेशियो। सो इस तरह के दिस इज कॉल्ड ENG कैमरा, बाय द वे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग, ओके, दिस इज नॉट अ ब्रॉडकास्ट कैमरा, इट्स अ ENG न्यूज कैमरा, ओके। देन यू हैव स्टूडियो कैमरास, और बड़े होते हैं वो स्टूडियो कैमरास। देन यू हैव EFP cameras, electronic field production, EFP cameras. So these are different variety of cameras which you use depending on your usage purpose. Okay, so अब ये 50 MBPS क्या है? MBPS का फुल फॉर्म तो सबको पता है, मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो मैं 50 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के डेटा को मैं पर सेकेंड में मैं सेव कर रहा हूं, और रेजोल्यूशन 1080। जैसे मैं इसको 4K करूंगा, इसको 4K के लिए 50 MBPS नहीं लगेगा, फिर लगेगा इसको, क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन डबल कर दिया, मैंने बंदे की लेंथ लंबी कर दी, रेजोल्यूशन बड़ा कर दिया, इसको बेड भी बड़ा चाहिए। फिर इसको बेड कितना बड़ा चाहिए? 6 फुट का, यानी कि 50 MBPS की जगह पे मेरे को 100 MBPS मिनिमम करना पड़ेगा। एरी एलेक्सा, रेड, विच इज 8K 10K कैमरास, ओके, they also record even on 500 400 Mbps, 400 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps. Arri Alexa has a limit of recording at 600 Mbps. अब सोचिए कि मैं कहाँ रेजोल्यूशन को ले गया 8K, और कहाँ मैं अपने कंप्रेशन रेशियो को ले गया 8000 मेगापिक्सल, सॉरी 300 400 500 Mbps पे ले गया मैं डेटा को। तो अब होगा क्या, जितना ज़्यादा मैंने रेजोल्यूशन भी बढ़ा दिया, उतना ज़्यादा मैंने उसके MBPS कंप्रेशन भी बढ़ा दिया। तो अब मेरे मेमोरी कार्ड में पहले एक सब लेट्स से कि एक 64 GB में मेरा फुल HD में सपोज लेट्स से 1 घंटे का डेटा आ रहा था, लेट्स से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब यही अगर मैंने रेजोल्यूशन भी बढ़ा दिया, 8K कर दिया या 4K कर दिया, और कंप्रेशन को भी मैंने 50 Mbps से 100 या 200 कर दिया, तो वो जो 1 घंटे का डेटा है, वो जैसे जैसे आप जितना डबल करते जाएंगे, ड्यूरेशन आधा घंटा, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, 5 मिनट, तो 64 GB में अगर आप 64 GB में एरी एलेक्सा पे फुल हाई रेजोल्यूशन पे करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट डेटा निकलेगा। तब हम ये 64 GB भूल जाते हैं, तब हम शुरू करते हैं 512 GB से। 512 GB का एरी एलेक्सा बेसिक कार्ड एक्सेप्ट करता है, और 512 से शुरू होके 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 6 TB ऐसे TB में काम करते हैं, टेराबाइट पे काम करते हैं। फिर हम GB में काम नहीं करते, फिर हम टेराबाइट पे काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड, विच इज लाइट। अब देखो लाइट बताइए, कैमरा हमने बेसिक बात कर लिया, साउंड आपको बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है। साउंड में भी कितने तरह के माइक होते हैं मुझे ये बताइए। माइक, भाई एक माइक मेरे को लगा हुआ है, एक वो मैम यूज कर रही थी हमारी एंकर,
वो हैंड माइक, मैम वो हैंड माइक कहाँ दिखाइए ज़रा, कहाँ पड़ा है? मुझे ये बताइए इस माइक में और जो मुझे ये माइक लगा हुआ है, इन दोनों माइक में फ़र्क क्या है? सॉरी नेक्स्ट। रिसीवर तो मैडम इसका भी है, रिसीवर इसका भी है, मेरा रिसीवर इस यहाँ लगा हुआ है, इसका भी रिसीवर कहीं ना कहीं लगा होगा। नेक्स्ट, इसको कहते हैं पोलर पैटर्न। क्या कहते हैं? पोलर बेयर नाम सुना है सबने? पोलर पैटर्न, पोलर पैटर्न ऑफ माइक। नाउ व्हाट इज पोलर पैटर्न? Let's say this is one mic, any mic, ये भी और any mic। पोलर पैटर्न कहते हैं पिकअप पैटर्न को। अब पिकअप पैटर्न आपके पास सब किसी के हाथ में ना, नोट्स के लिए मैं देख रहा हूँ कोई भी नोट्स नहीं बना रहा। मैं सब आके जो बकवास करके चला जाऊंगा, सब यहाँ बुद्धि में घुसेगा और शाम को खाने के साथ सब आउट हो जाएगा। कोई एक बच्चा भी नोट्स बना रहा है? जो नोट्स बना रहे हैं वो समझदार हैं, और बाकी के सारे गूगल करते रहना फिर। ठीक है? किस सर ने क्या समझाया था? पोलर पैटर्न। पोलर पैटर्न क्या होता है? पिकअप पैटर्न भी कहते हैं इसे, पिकअप पैटर्न। पिकअप पैटर्न में सबसे पहले होता है ओमनी डायरेक्शनल। क्या कहता है? ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी का मतलब चारों तरफ की ऑडियो कैच करेगा। ये जो माइक मैंने लगा रखा है, दिस इज ओमनी डायरेक्शनल माइक। फिर आता है, और ये ओमनी का मतलब हो गया कि ये माइक पूरा का पूरा 360 डिग्री का ऑडियो कैप्चर करेगा। फिर आता है यूनी डायरेक्शनल। ओमनी के बाद यूनी। यूनी में खाली इतने एरिया का फोकस करेगा। फिर यूनी के बाद आता है सुपर डायरेक्शनल। खाली अपने जहाँ पे यहाँ पे इसका सेंसर लगा होता है, खाली सेंसर के सामने की ऑडियो करेगा, इधर उधर की आवाज़ नहीं करेगा रिकॉर्ड। म्यूजिशियंस तबला पे, गिटार पे, ये जितने म्यूजिशियंस हैं जो अपने माइक यूज़ करते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, ये सब यूनी डायरेक्शनल होते हैं। क्योंकि कि ओमनी डायरेक्शनल होगा तो वो तबला यहाँ बज रहा है, वो तबले की आवाज़ भी रिकॉर्ड करेगा, वो सितार की भी रिकॉर्ड करेगा, वो गिटार भी करेगा, वो हारमोनियम भी करेगा, वो तो सब कुछ पकड़ेगा। तो म्यूजिशियंस जो यूज़ करते हैं वो ओमनी। फिर आता है सुपर डायरेक्शनल। सुपर डायरेक्शनल, और उसके बाद आता है सुपर डायरेक्शनल के बाद पिन डायरेक्शनल। वाइल्ड लाइफ के अंदर जैसे मैं वाइल्ड लाइफ करता हूँ, वाइल्ड लाइफ के अंदर मैं या तो सुपर डायरेक्शनल या पिन डायरेक्शनल। पिन डायरेक्शनल माइक ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जैसे आपकी डिश टीवी की छतरी होती है ना, डिश टीवी का एंटीना, ऐसे डिश टीवी की तरह साउंड रिकॉर्डर्स पकड़ता है, और आगे उसके एक सेंसर लगा होता है, और वो उसकी रेंज है, सपोज़ यहाँ से टाइगर 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, मेरे पास जूम लेंस है, मैंने जूम लेंस से उसका तो क्लोजअप ले लिया। व्हाट अबाउट ऑडियो? ऑडियो तो वो यहाँ का कैप्चर करेगा, 1 किलोमीटर दूर का थोड़ी। ऑडियो के लिए मुझे यूनी डायरेक्शन या पिन डायरेक्शनल माइक लगाना पड़ता है। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर हम लोग ये सब माइक जो आप देख रहे हैं, ये सब बकवास है, किसी काम नहीं आते माइक। और वो एक माइक ऐसे ही जितना आप उसकी डायरेक्शंस आप उसको नैरो करते जाएंगे माइक, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ये वाला माइक जो मैंने लगा रखा है सिनाइजर का, ये होगा 40-45 हज़ार का, 45 हज़ार का। G4 है शायद, ये G4 है ना, G4। ये 45 से 47 हज़ार के बीच का है। लेकिन यही अगर मैं पिन डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल माइक लूँगा, एक माइक 5 लाख रुपए का है। सबसे पहले ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी के बाद यूनी डायरेक्शनल, एक इसमें, सॉरी मैं भूल गया, इसमें एक बाई डायरेक्शनल भी होता है। सॉरी, बाई डायरेक्शनल होता है, खाली इधर का और इधर का करेगा, सेंटर का नहीं करेगा। जब आप दो लोगों का इंटरव्यू करते हैं न्यूज़ चैनल में,
तो मैंने बाई डायरेक्शनल में यूँ माइक किया तो मेरा ऑडियो, यूँ किया तो इनका ऑडियो, इस तरह का भी आता है, दैट्स ऑल कॉल्ड, दैट्स बाई डायरेक्शनल. सो यूनी, ओमनी, ओमनी के बाद में बाय, बाय के बाद में फिर यूनी, यूनी के बाद सुपर, फिर पिन, फिर पिन. ठीक है. तो इतने तरह के ये जो माइक्स हैं, ये सब इनके पिकअप पैटर्न, आप कभी भी, अब आज के बाद में कोई भी अगर कोई माइक खरीदता है, मेरा काम क्या होता है, मैं कोई मोबाइल भी खरीदता हूँ, कोई भी चीज़, टीवी खरीदता हूँ, कुछ भी खरीदता हूँ, मैं सबसे पहले, आपका भी यही होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ टेक्निकल पीपल, ओके, यू आर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीपल. सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पढ़िए, कोई भी चीज़ खरीदिए उसकी स्पेसिफिकेशंस को पहले पढ़िए. गो विद द स्पेसिफिकेशंस, डू नॉट गो बाय एड. ठीक है, एड में वो बोलेगा 100 मेगापिक्सल, गो बाय स्पेसिफिकेशन. ठीक है, जो डब्बे पे उसके स्पेसिफिकेशन लिखी होगी, कंपनी वहां पे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर कंपनी ने वहां डब्बे पे गलत लिख दिया, एड में वो 100 मेगापिक्सल बोलेगा, अगर डब्बे पे भी 100 मेगापिक्सल है तो फिर 100 मेगापिक्सल है. लेकिन अगर डब्बे पे लिखा हुआ है 60 मेगापिक्सल, देन इट इज 60 मेगापिक्सल, इट विल नॉट गिव यू 100. अभी वीवो का मैं कोई ऐड देख रहा था, एक सेकेंड, वीवो का मैं कोई ऐड देख रहा था, दे आर क्लेमिंग 128 मेगापिक्सल वीवो का. मैं मान ही नहीं सकता कि एक 1/8 सेंसर के अंदर 128 मेगापिक्सल कैमरा, मैं मान ही नहीं सकता. हाँ, आईफोन इज famous for its camera, its quality, that is why they charge a hefty amount, that is why. Yes, tell me now. सर ऐड में तो बहुत कुछ झूठ बोला जाता है, और मीडिया के अंदर ना, एक बार बताऊं, जो दिखता है वो बिकता है कहते हैं हम लोगों का ना, एक बहुत डायलॉग है कि जो दिखता है वो बिकता है. तो जो हम दिखाते हैं ना वो कुछ और होता है, और एक्चुअल सच्चाई कैमरा की वही वाली बात है. मैं जब फ्रेम बनाता हूँ, शॉट बनाता हूँ, जूम इन करके मैंने इस लड़की का एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा लाइटिंग वाइटिंग करके मिड शॉट बना दिया. ठीक है, मिड शॉट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. अब अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो इसके पीछे लाइटें भी पड़ी होंगी, कटर स्टैंड पड़े होंगे, कचरा पट्टी, ये वो, पान की थूकें भी पड़ी होंगी. क्या मैं वो सब दिखा रहा हूँ क्या कैमरा में? नहीं दिखा रहा. मैं कैमरा में, इस कैमरा में जूम करके खाली दर्शकों को क्या दिखा रहा हूं, नीट क्लीन साफ, नीट क्लीन दिखा रहा हूं. लेकिन अगर आप जूम आउट करके मीडिया को देखेंगे, थोड़ा सा पीछे से आके देखेंगे ना, तो मीडिया इज ऑल अबाउट कचरा. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कचरा. मेरे एक अंकल हैं, वो उनका फार्म हाउस है, तो हर किसी को शूटिंग देखने का शौक होता है, ये ना. तो मेरे अंकल, चाचा, रिश्ते में मेरे चाचा हैं, तो हमेशा कहते थे मेरे को, बेटा तुम्हारा फार्म हाउस है, कभी आ जाओ, हमारे को भी शूटिंग दिखा दो, हमारे को. एक दिन ऐसा हुआ, मेरे प्रोडक्शन वाले ने बोला कि सर फार्म हाउस कैंसिल हो गया है, शूटिंग कैंसिल हो गई है, तो कोई फार्म हाउस लाओ, फार्म हाउस चाहिए. मेरे को एकदम ध्यान आ गया. मैं कहा अंकल को मैंने फ़ोन किया, मैं अंकल आज मेरे पास लोकेशन नहीं है, आपके फार्म हाउस पे आ जाएं. मैं जस्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ आपसे. तो अंकल तो खुशी से, हाँ हाँ बेटे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शूटिंग करने आ जाओ, मेरे को तो शूटिंग देखने का बड़ा शौक है. अब हुआ क्या, हम लोग 60 लोगों की टीम एड फिल्म शूट कर रहे थे हम लोग, हुंडई क्रेटा का. तो वो एड फिल्म शूट करते हुए हमने उनके गार्डन में वो हुंडई क्रेटा को घुमाया, गार्डन की बैंड बजा दी. ठीक है, फार्म हाउस के, क्योंकि टायर वगैरह सब घुमाए. अंकल को साउंड रिकॉर्डिस्ट ने ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर भेज दिया. खाने की कुकर की सीटी बजे, साइलेंस साइलेंस, कोई आवाज़ ना कर सके. और जब हम पैकअप करके गए, मैं सच बता रहा हूँ, तो लाइट बॉय ने इतना गंदगी, लाइट बॉय ये वो, प्लेटें ये वो, खाना वाना सब. जब उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से शाम को 7 बजे 8 बजे 7:30 8 बजे पैकअप हुआ हमारा, जब वो नीचे आए ना, तो वो हैरान हो गए कि ये मेरा फार्म हाउस है. गंद मचा रखा था. तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि बेटा आज मैंने शूटिंग देख ली, आज के बाद मैं तेरे को कभी नहीं बुलाऊंगा. ऑब्वियसली क्लीनिंग के लिए ऑब्वियसली पैसे तो दिए ही, वहाँ पे स्वीपर भी लगाया. बट माय पॉइंट इज कि वी ऑल, जो आपका सवाल था कि हम जो टेलीविज़न में दिखाते हैं,
वी ऑल आर, वो क्या कहते हैं, वो एक अनिल कपूर की एक मूवी का डायलॉग भी है कि दर्द बेचते हैं खरीदते नहीं हैं, तो हम सुंदरता दिखाते हैं लेकिन सुंदरता करते नहीं हैं। ठीक है, माधुरी दीक्षित, आप सबको स्क्रीन पे, बिकॉज आई हैव शॉट पर्सनली विद माधुरी दीक्षित सो आई नो, ठीक है, 1 इंच का मेकअप करती है वो। हाँ जी, 1 इंच की परत होती होगी, मतलब कहने वाली बात है 1 इंच, मतलब बहुत मोटी परत होती है, अदरवाइज शी इज, उसका चेहरा पूरा पिंपल से भरा हुआ है। लेकिन क्या किसी ने माधुरी दीक्षित को कभी पिंपल्स के साथ या चेहरे पे एक दाग के साथ भी देखा है? इट्स ऑल अबाउट मेकअप, इट्स ऑल अबाउट पुताई करो, चलो काम पे चलो। हाँ, वी शो समथिंग विच इज गुड गुड टू सी। ठीक है, नॉर्मल चेहरे तो हम सब बिना मेकअप के हैं, नॉर्मल चेहरा तो हम देखते रहते हैं ना। तो हमें टेलीविज़न पे क्या चाहिए? हमें टेलीविज़न पे हमेशा एक चीज़ याद रखना, हम सपनों के सौदागर हैं। हमारा इंडस्ट्री इज़ सपनों के सौदागर। हम सपने बेचते हैं, हम सुंदर चीज़ें बेचते हैं। न्यूज़ जर्नलिज्म इकलौता एक ऐसा मीडिया है जो कि कड़वी गंदी सच्चाई दिखाता है, खून दिखाता है, मर्डर दिखाता है, जो सोसाइटी का जो बैड पार्ट है न्यूज़ चैनल वो भी दिखाता है। न्यूज़ चैनल सब कुछ एकदम नीट क्लीन नहीं दिखाता। सो न्यूज़ जर्नलिज्म इज़ वन मीडियम जो आपके समाज की, हमारे समाज की एकदम सही, और सच बताऊं तो न्यूज़ चैनल भी आज की डेट में फुद्दू बनाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, आज की डेट में न्यूज़ चैनल इज ऑल्सो क्या कहते हैं उसे, टीआरपी गेम, टीआरपी गेम, मसाला मसाला, इट्स ऑल अबाउट मसाला। ओके, ठीक है। सो आप जो रियलिटी टीवी देखते हैं, जिसे आप रियलिटी, जैसे इंडियन आइडल, ठीक है, उसमें आपको क्या लगता है, ये जो रोना धोना, ये जो कैमरा के सामने आंसू फांसू, ये सब क्या ओरिजिनल है? सब ग्लिसरीन है, सब ग्लिसरीन लगा के आंसू निकाले होते हैं। जबरदस्ती सिखाया होता है कि अब तुम्हें इस समय रोना है। हाँ, मैं अब बाहर हो गई, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। अरे क्या दुख हो रहा है यार, सब ड्रामा होता है। मैं अभी सर के साथ रूम में बैठा हुआ था, तो रियलिटी टीवी, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ का एक रियलिटी टीवी का एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक एक्सपीरियंस। व्हाट इज़ रियलिटी टीवी? आज से लगभग 17-18 साल पहले मैं एम्स में 1 साल तक शूटिंग किया था बीबीसी के लिए, और सीरीज़ का नाम था हॉस्पिटल। हमारे को हमारे डायरेक्टर की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस थी, नो रीटेक, रीटेक शब्द नहीं होगा। ना आप पेशेंट को बोलेंगे, ना आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि रीटेक। अब भाई पेशेंट मर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, अब मैं ऑपरेशन में ये तो नहीं कह सकता कि रीटेक करो सर, दोबारा से काटो, ये तो नहीं कह सकता। सो उस टाइम में पहली बार लाइफ में एक केस आया था मेरे सामने। एक गरीब माँ बाप थे जिनकी की प्रेग्नेंट लेडी आई थी, उसके साथ में उसका हस्बैंड, और उसके बच्चे के दिल में छेद था। मैं सर को अभी रूम में शेयर कर रहा था ये स्टोरी। मतलब ये ऐसी लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं जो कि शायद आपको कैमरा करते हुए या इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ऐसे एक्सपोजर मिलेंगे जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान को जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। पहली बात, कोई भी डॉक्टर के अलावा डिलीवरी रूम के अंदर, जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी रूम में डॉक्टर के अलावा कोई अलाउड नहीं होता। मेल डॉक्टर होगा तो भी, वैसे गायनेकोलॉजिस्ट 90% जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट वो लेडीज़ हैं, बट अगर मेल डॉक्टर भी है तो वो डॉक्टर होगा तभी अलाउड है। मी बीइंग अ कैमरा पर्सन, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू गो इनसाइड द डिलीवरी रूम एंड शूट द डिलीवरी। ना हाउ, अब ये क्या हुआ कि ये जो बच्चा है, मैं जल्दी कट शॉर्ट करके बताऊंगा बिकॉज आप लोगों की भी बहुत क्वेरीज होंगी। सो ये जो बच्चा है, इसको वो अबॉर्शन कराने के लिए आए हुए थे उस दिन,
क्योंकि कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये बच्चा बचेगा नहीं, आप इसको अबॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये बच्चे वहाँ पे ये बच्चे को लेके अपने मतलब सॉरी अपने पेरेंट्स अपने पहुँचे हुए, तो वहाँ से एक यूएस का एक डॉक्टर फैकल्टी था, सीनियर डॉक्टर था कोई गायनेकोलॉजिस्ट, वो ऐसे विजिट पे निकला हुआ था और अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी यूएस की। तो वो ऐसे सबसे पूछ रहा है ये क्या केस है, इसका क्या केस है, इसका क्या केस है, सबके बारे में पूछ रहा था। तो ऐसे उसने उन हस्बैंड वाइफ के बारे में पूछा, बताओ इनका क्या केस है। तो डॉक्टर ने उनकी फ़ाइल निकाल के दिखाई, कि इनकी हार्ट पे छेद है और ये तो अबॉर्शन के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर ने कहा डोंट अबॉर्ट, दैट अमेरिकन डॉक्टर ही सेड डोंट अबॉर्ट, इस बच्चे को की डिलीवरी मैं करूँगा और जब डिलीवरी होगी उससे 1 हफ्ता पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं यूएस से वापस आऊँगा और मैं डिलीवरी करूँगा। ओके जी। हमारे लिए भी एक एज अ फिल्म मेकर एक कहानी में ट्विस्ट आ गया कि सडनली एक बच्चा जिसको अबॉर्शन करना था, अगले 15 मिनट में उसका अबॉर्शन है और उसको जीवन दान मिल गया है। एक डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर, उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो कह रहा है मैं इसका डिलीवरी करूँगा। वो हिंदी की कहावत है ना, वो यहाँ पे लागू होती है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है। हमने पूरे 1 साल तक पूरे 9 महीने उस लेडी को फॉलो किया। वो जब भी चेकअप के लिए आती थी हम उसको शूट करते थे, पूरा चेकअप, ये वो, हार्ट में हर बार उसके अल्ट्रासाउंड करते थे, उसके हार्ट में छेद दिखता था, कैमरा में दिखता था। एनीवेज 9 महीने पूरे हुए, डिलीवरी का समय आया, अमेरिका के डॉक्टर को बुलाया गया, वो डॉक्टर आया, खाली मैं अलाउड था डिलीवरी रूम के अंदर। डायरेक्टर को डॉक्टर ने बोला कि ना आपका असिस्टेंट जाएगा अंदर, ना डायरेक्टर जाएगा, ओनली यू एंड योर कैमरा विल बी अलाउड इनसाइड। आई सेड फाइन, आई वेंट इनसाइड। मेरे को यहाँ पे लेडी के शोल्डर के पास यहाँ पे कैमरा की पोजीशन मिल गई कि यहाँ पे आप रह सकते हैं। एंड नाउ इमेजिन द शॉट कि मैं अब डिलीवरी हो रही है और मैं डॉक्टर के जो मेन अमेरिकन डॉक्टर जो डिलीवरी कर रहा है, मैं उसके हैंड को क्लोजअप में ना मैं फॉलो कर रहा हूँ, हाथ को, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द बेबी। बच्चा पैदा हुआ, बाहर आया, मुश्किल से 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 2-3 सेकंड के लिए रोया और इतनी वो 2-3 सेकंड में डॉक्टर ने वो उसको यहाँ पर जो मीटर वायर लगाते थे ना, वो सब लगा दिया था उसके हार्ट बीट चेक करने के लिए। और वो बच्चा 30 सेकंड मतलब 5 सेकंड में वो बच्चा रोया और वो रोना बंद हो गया उसका। डॉक्टर ने क्या किया, उसका एम्बिलिकल कॉर्ड तक नहीं काटा था अभी बच्चे का, और बच्चे को क्या किया, डॉक्टर ने बच्चे का हार्ट को माँ के हार्ट के साथ यूं लाके ऐसे चिपका दिया, यूं चिपकाया, और आप बिलीव करेंगे कि वो बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो गई टच करते साथ ही। अब यहां पे पहली बार पूरे 1 साल के अंदर, अब मैं तो हाथ को फॉलो कर रहा था, मैं बच्चे को फॉलो कर रहा था, मैंने सारा एक्शन तो मेरे पास आ गया कि जब बच्चा रोया फिर चुप हो गया, मतलब वो आंखें बंद, बच्चा बेहोश, तो ऑलमोस्ट उसकी हार्ट बीट बंद हो गई, तो रोना बंद हो गया। जैसे टच किया तो वो रोना शुरू, क्वां 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 रोना शुरू, हार्ट बीट चालू। अब मैंने डॉक्टर को बोला, मैं डॉक्टर साहब आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे एक रीटेक चाहिए। कहते क्या? आई सेड सर मैं ना आपके हाथ को फॉलो कर रहा था, मुझे पूरा एक्शन तो मिल गया है कैमरा में, लेकिन वो जो मॉनिटर है, जिस मॉनिटर पे वो हार्ट बीट चालू हुई और रुकी और फिर से चालू हुई, वो शॉट नहीं मिला, मुझे शॉट चाहिए। मैं कैसे साबित करूंगा भाई, मुझे तो दिखाना है ना कैमरा में कि हार्ट बीट रुकी, जब टच किया तो छाती के साथ टच किया, हार्ट के साथ, तो वो हार्ट बीट चालू हो गई। अब वो मॉनिटर का शॉट नहीं है मेरे पास। डॉक्टर कहता आर यू श्योर, तुम एक नवजात शिशु को, अभी जो पैदा हुए 5 मिनट नहीं हुए, उसके जीवन के साथ खेलने को कह रहे हो, उसकी हार्ट बीट रोकने को कह रहे हो? मैंने कहा सर मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए। ये सर कि बड़ी मुश्किल से वो डॉक्टर माना, और फिर मैंने वो मॉनिटर का शॉट बनाया, मॉनिटर का शॉट बना के ओके मैंने कहा स्टैंड बाय, रोल कैमरा एंड एक्शन सर। जैसे उसने, भाई साहब मैंने रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो उसने बच्चे को फिर से हटाया और टच किया, वो हार्ट बीट जैसे ही हटाया तो हार्ट बीट रुक गई, और टच किया तो हार्ट बीट चालू हो गई।
यार वो तो अपनी मम्मी से पूछना जब जब डिलीवरी होती है ना तो माँ का क्या हाल होता है, ठीक है। माँ का तो होश भी नहीं था, वो तो बेचारी पेन में थी, उसको तो कोई मतलब ही नहीं था कि क्या शूटिंग चल रही है, क्या उसको कोई मतलब थोड़ी है, वो तो लेबर पेन में थी, ठीक है। तो इट्स anyways, let's not get into the details, okay. What I'm trying to say is that इस तरह के लाइफ जीवन के एक्सपीरियंसेस आपको एक नॉर्मल, एक जो नॉन मीडिया का आदमी है, पहली बात तो उसको लेबर रूम में घुसना नहीं मिलेगा, दूसरी बात उसको कभी इस तरह के चांसेस नहीं मिलेंगे। एक जर्नलिस्ट ही है, एक कैमरामैन ही है, एक डायरेक्टर ही है, एक रिपोर्टर ही है जिसको इस तरह का चांस मिलता है। मैं जब सबसे पहली बार मैं नेशनल ज्योग्राफिक के लिए मैं को एक फिल्म मिली ऑन द सेक्स वर्कर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। मैं जीवन में उस टाइम में मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं उस टाइम में मेरे ख्याल से मेरी उम्र रही होगी 25-26 साल। मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकता था कि मैं जाके रेड लाइट एरिया में जीबी रोड जाके और बॉम्बे के कमाटीपुरा में जाके शूट कर रहा हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं थी शर्म के मारे। लेकिन मैंने सेक्स वर्कर्स को एक्चुअली एक इंसान के रूप में जब जाना, जब उनके साथ मैंने काम किया, मुझे पता चला उनके दुख, उनके दर्द। वरना एक मर्द की तरह, मैं आदमी की तरह सोचूं तो फॉर मी अ सेक्स वर्कर इज अ सेक्स वर्कर, पे एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट। बट there is a woman hidden inside a sex worker also. There is a mother, there is a sister, which शायद मैं एज अ फिल्म मेकर नहीं होता तो उसके अंदर माँ, बहन, बेटी, वो जो भावनाएं हैं वो शायद मैं एज अ फिल्म मेकर अगर नहीं होता तो मैं शायद कभी भी वो एक्सपोजर जीवन में नहीं ले पाता जो मैंने लिया। So many incidents I have. लाइफ इज, मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि बेटा जब मैं 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले लूँगा ना तो मेरे पास जीवन में तुम्हारे को बताने के लिए कहानियाँ नहीं होंगी, मेरे जीवन के सच्चे सही एक्सपीरियंसेस होंगे। क्योंकि कि हर रोज़ एक नया दिन है मेरे लिए, हर रोज़ एक नई स्टोरी है, नए लोग। एक दिन मैं आई वॉज शूटिंग वन डे इन मेरठ की सड़ी गंदी पॉटी वाली गलियों के अंदर, यूनिसेफ के लिए काम कर रहा था, ठीक है। मेरठ की गलियों में, मैं गंदी बदबूदार गलियों में काम कर रहा हूँ। और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी पेरिस की एंड वी वर वेलकम्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वी वर गिवन द रेड कार्पेट वेलकम। तो मैं यही सोच रहा था, मैं अपने आप से सवाल कर रहा था कि इंदीश बेटा, कल तू मेरठ की गंदी पॉटी वाली गलियों के अंदर शूट कर रहा था और आज तेरे को रेड कार्पेट वेलकम मिल रहा है पेरिस के अंदर। सो दैट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू सी। सोचो कितना डाइवर्स है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रनिंग विद माई 6th पासपोर्ट। मेरा 6वां पासपोर्ट चल रहा है, 5 भर चुके हैं, आधी से ज़्यादा दुनिया में घूम चुका हूँ। तो मेरे पास जीवन में क्या है, एक्सपीरियंस ही है। Now over to you. I think another half an hour, 1 hour, whatever we have. I think now it's up to you. Forum is open. अब आप लोग पूछिए। मैं तो 1-2 घंटे से बोल ही रहा हूँ। मैं करियर को लेके, टेक्निकल को लेके, कैमरा, लाइटिंग, साउंड, एनीथिंग, अपने प्रोफेशन को लेके, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। यस बॉस। सर हेलो सर, माय नेम इज़ जनमीत सिंह। Hi. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एज अ फिल्म मेकर आपकी क्या सेंस होती है एक शॉट को शूट करते हुए? यार सबसे पहले तो मैं अपनी कैसे समझाऊं, सबसे पहले तो मैं अपने लाइफ को टेलीविज़न के बाहर रखता हूँ जितना हो सके। जहाँ पे मैं पढ़ा करता था तो मेरे डीन जो मेरे लेक्चरर थे, उन्होंने बोला था, टेलीविज़न का नाम दिया था इडियट बॉक्स। क्या बोला था?
इडियट बॉक्स। सो बोलते थे हमें, मेरे को पहला लेक्चर, पहले दिन का लेक्चर आज तक याद है। तो उन्होंने बोला था कि अपने आप को बेटा इस इडियट बॉक्स के अंदर मत घुसा देना, कभी बाहर रखना, ठीक है। तो कभी भी इमोशंस में मत बहना। आपके सामने जो हो रहा है वो आपको सिर्फ एज अ फिल्म मेकर कैप्चर करना है। द मोमेंट यू गेट इन इन्वॉल्व, लेकिन होता नहीं है, एक्चुअली ये होता नहीं है। जैसे मैंने आपको सेक्स वर्कर्स के बारे में बताया कि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो कई बार मैंने विकलांग बच्चों के साथ काम किया। यार विकलांग बच्चों के साथ काम करते हुए मेरे को आज भी आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि आप सब्जेक्ट के अंदर घुसो नहीं, लेकिन जितना कोशिश कर सको अपने आप को इमोशनली डिटैच रखो जितना हो सके। पॉसिबल नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, ठीक है, और सामने वाला भी इंसान है। तो जब मैं हॉस्पिटल शूट कर रहा हूं, जैसे हॉस्पिटल जगह पे मेरे सामने लाशें लाशें, मैं मॉर्चुरी में शूट कर रहा हूं। अब आपका सवाल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया। मेरे को पहली बार मॉर्चुरी में जाने का मौका मिला और मेरे को डायरेक्टर ने बताया नहीं कि मैं मॉर्चुरी जा रहा हूँ। उसने बोला हम आई डोनेशन पे एक स्टोरी, हॉस्पिटल में था तो आई डोनेशन पे एक स्टोरी शूट कर रहे थे। तो आई कब मिलती है? जब एक डेड बॉडी आती है तभी उसकी आंख निकाली जाती है। तो डायरेक्टर को पता था कि मॉर्चुरी में बॉडी जाएगी और वहाँ पे मॉर्चुरी में इसकी आंख निकाली जाएगी। अब मुझे डायरेक्टर ने जान के नहीं बताया ये बात कि तू मॉर्चुरी में जा रहा है शूटिंग करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मॉर्चुरी का नाम सुनते साथ ही लोग मतलब एक टेरर हो जाता है, ठीक है। तो अब वही वाली बात है, मैं फॉलो अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं डेड बॉडी को फॉलो कर रहा हूँ। अब स्ट्रेचर जा रहा है, स्ट्रेचर में वो जो अटेंडेंट होता है वो डेड बॉडी को लेके जा रहा है और मैं जस्ट फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो 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 फॉलो, मुझे नहीं पता डेड बॉडी कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता, और एक्चुअली डायरेक्टर ने मुझे बताया भी नहीं था। खैर जी, जब मैं डेड बॉडी को फॉलो करते करते एक जगह पे फाइनली एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, ऐसे कमरों में एंट्री करते हुए फाइनली डेड बॉडी जहाँ पे रुकी, मैंने अपना कैमरा रोका और मैंने कट किया। कट करके मैं ऊपर क्या देखता हूँ, जैसे मैंने सिर ऊपर किया अपना, सामने एक बंदे को एक आदमी आरी, बिल्कुल जो आरी होती है, जो इलेक्ट्रिक सॉ होती है, ग्राइंडर जिसे कहते हैं, उससे उसकी खोपड़ी काट के ऐसे खोपड़ी को उल्टा कर रखा था और उसके मुंह पे पूरा खून ही खून और खून की फव्वारें निकल रही और इतनी बदबू। जब तक मैं अपने शॉट के अंदर था मुझे ना बदबू दिखी, ना मुझे वो विजुअल दिखा, मुझे ना एहसास हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ मॉर्चुरी के अंदर और बंदे का सिर काटा हुआ, पहली बार खोपड़ी खुली हुई देखी मैं सीधा कैमरा छोड़ा, मैंने गाली दी इतनी बड़ी डायरेक्टर को और बाहर जाके वॉमिट करा। बाहर जाके मैंने वॉमिट किया और मैंने उसको बोला, मैं कहा कमीने मेरे को बता तो दे कि मेरे को कहाँ ले जा रहा है तू। कहता मैंने तेरे को जान के नहीं बताया था, बिकॉज तेरे को ये जो वॉमिट अभी आई है ना, तेरे को पहले से ही तू वॉमिट करने लग जाता। तो कहता मेरे को मेरा शॉट तो मिल गया। मैं कहा तेरा शॉट मिल गया, मेरी तो बैंड बज गई। सो दैट्स व्हाट, कि आप क्या देखते हैं। मुझे कुछ नहीं दिखता जब मेरे को मेरा शॉट दिख रहा होता है, मेरे को मेरा कंटेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू सी, योर कंटेंट। बाकी सब दुनिया जाए भाड़ में, उल्टी आएगी बाद में आएगी ना, पहले शॉट तो आ गया। डायरेक्टर का क्या जवाब था, मेरा शॉट तो आ गया, तेरे को पहले बता देता तो तू पहले ही अटक जाता, तू मॉर्चरी में एंटर ही नहीं करता। और बात सही थी, बात सही थी। Anyways, next. Very good afternoon, sir. Sir, I wanted to know that, like, when you go for work, which is a very common challenge that you face every time you shoot, like literally every time, no matter wherever you go, which is a very, like, the challenge that you have to face no matter wherever you are shooting every time. Is there Meeting any new such- people. Sorry? Meeting and understanding new team, new people. That's the biggest challenge.
And sir, in your life till date, wherever you have been working, which has been the most toughest challenge that you have come across ever? So many. There, Which you personally think that has has some major aspect, some major effect in your life, something like that. Any particular incident or something? Yes. मैंने अपनी मौत को अपने सामने देखा है. I'll tell you. हम लोग जी टीवी में काम करता था मैं तब, और एक प्रोग्राम शूट किया करते थे, जीवन नहीं, क्या नाम था, एक और नज़रिया. सो बेसिकली एक और नज़रिया इज़ लाइक अनादर, एक और नज़रिया का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका जीवन जीने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा. तो हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों को शूट करते थे, जो कि नॉर्मल एक जो इंसान जीता है उससे अलग सोचते हैं. तो ऐसे ही हम लोगों ने डेथ के ऊपर एक सीरीज़ की थी. जैसे सपोज, तो बनारस कौन कौन बनारस गया है? सभी गए हैं लगभग. तो बनारस में जो लाशों को जलाता है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? डोम राजा बोलते हैं, डोम राजा. ठीक है. तो डोम राजाज के ऊपर एंड पीपल हु आर एसोसिएटेड विद डेथ, वो ऐसे लोग जो कि मौत उनके लिए पार्टी है. कोई मरा तो उनके लिए कमाई है. लकड़ी बेचने वाला, वो पूजा की सामग्री बेचने वाला. इवन डोम राजा, हरिश्चंद्र की कहानी सबने सुनी है कि नहीं सुनी? राजा हरिश्चंद्र की. ठीक है, आई एम श्योर, अगर वरना अपने मॉम डैड से पूछना हरिश्चंद्र की. वो भी डोम राजा थे. हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन उनको एक ज़माने में उन्होंने सब कुछ छोड़ के उनको डोम राजा की उनको पनिशमेंट दी गई थी कि आप डोम राजा बन जाओ. तो उन्होंने अपने बच्चे को जलाने के लिए भी, अपने बेटे की लाश जलाने के लिए भी उन्होंने टैक्स लिया था, पैसा लिया था. तो पैसा, उस समय पैसा नहीं, तो उनकी पत्नी के पास और कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू का एक टुकड़ा फाड़ के उनको दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है, बस ये है, और ये तुम्हारे बेटे की लाश है जिसको जलाने के लिए. सो ऐसे ही इस तरह के जब काम करते हैं, तो मैं अघोरी साधुस के ऊपर, मैंने साधुओं के ऊपर बहुत काम किया है, डॉक्यूमेंट्रीज़. तो मैंने नागाज़ के ऊपर, अघोरियों के ऊपर तो बहुत काम किया है ना. अघोरी साधु सबको पता है? अघोरी साधु की नहीं पता? कौन होते हैं अघोरी? अघोरी वो होते हैं जो कि सबसे पहले तो वो अपनी पॉटी को खाते हैं, अपने सुसु को पीते हैं. ठीक है. डेड बॉडी की पूजा करते हैं, शव भोग, शव संभोग एंड शव साधना, ये 3 इनके अघोरियों के रिचुअल्स होते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे फाइंड अ डेड बॉडी, दे फर्स्ट प्रे द डेड बॉडी, प्रीच द डेड बॉडी, देन दे डू द सेक्स विद द डेड बॉडी, एंड देन दे ईट द डेड बॉडी. ओके, सो देयर आर 3 रिचुअल्स. एक पक्का अघोरी बनने के लिए आपको तीनों कर्म करने पड़ते हैं, शव भोग, संभोग एंड साधना. ठीक. अब हुआ क्या, मैं अघोरी के साथ काम कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ. आपने जो बोला लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ये वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरा. तो हम लोग अघोरी के साथ काम कर रहे थे. उसकी गंगा के किनारे झोपड़ी सी बनी हुई थी, बिल्कुल गंगा के तट पे बिल्कुल झोपड़ी बनी हुई है. और ये हम हरिद्वार, ऋषिकेश के पास में की बात बता रहा हूँ मैं. तो ऋषिकेश नहीं, सॉरी, हरिद्वार में शूट कर रहे थे हम लोग. और बाबा को हमने लाइटिंग वाइटिंग करके लेपल वेपल लगा रखा, और बाबा का इंटरव्यू चल रहा है. तो ये लोग शराब वराब खूब पीते हैं अघोरी लोग. तो हमने बाबा को ओल्ड मॉन्ग की बोतल ला के दे दी, चिकन विकन ला के दे दिया. मैं कहा बाबा खुश हो जाएंगे तो अच्छे से इंटरव्यू देंगे हमें. ठीक है, शूटिंग भी कॉपरेट करेंगे हमारे साथ. हमने बोतल ला के दे दी. अपना अघोरी ने अपना खाना वाना खाया, अपनी दारू वारू पी के सेट होके बाबा बोला, कह रहा बाबा आप तैयार है, क्या पूछ रहा है पूछो. हमने कहा ठीक है. हमने माइक वाइक लगाया, लाइटिंग वाइटिंग करी, अपना कुछ वो थोड़ी सी वो खोपड़ी वोपड़ी सब सेट वेट पे उनके वहाँ पे झोपड़ी में पड़ी हुई थी, वो खोपड़ी वोपड़ी पे लाइटिंग वाइटिंग करी सब करके, और हमने इंटरव्यू शुरू किया. इंटरव्यू शुरू हुए अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए थे, 5-7 मिनट हुए होंगे. उन्होंने लेपल निकाला, अपना बाहर फेंका, और MCBC की गालियाँ देते हुए
बोला कि बाबा जा रहा है। मैंने कहा, हमें लगा कि यार बाबा को दारू चढ़ गई, बाबा पागल हो गया, बाबा को दारू चढ़ गई लग रहा है। तो लेपल निकाल के बाबा हमारे को कहता है कि अगर जीना है तो बाबा के साथ चलो। हमें तब तक एहसास नहीं था कि बाबा क्या सोच रहा है, क्या बाबा के दिमाग में चल रहा है, हमें दूर दूर तक एहसास है। डायरेक्टर मेरे को आंख मारी कि कहता टेली लाइट को, ये जो जैसे कैमरा के आगे टेली लाइट लगी हुई है ना, तो कैमरा की टेली लाइट ऑफ कर दे कहता, और रिकॉर्डिंग ऑन रख। तब मारुति वैन थी हमारे पास, मुझे अभी तक याद है, कार भी हमारे पास मारुति वैन थी। तो डायरेक्टर और बाबा और असिस्टेंट को मैंने बोला कि तू डिक्की के अंदर अपने आप को छुपा ले, क्योंकि गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी। तो असिस्टेंट तो डिक्की के अंदर जाके छुप गया, और मैं और डायरेक्टर और मैं, मतलब जैसे ये ड्राइवर के साथ तो हमने बाबा को बिठा दिया अगली सीट पे, मैं इस कोने में बैठ गया और साथ में मेरे डायरेक्टर बैठ गया, और मैं बाबा को शूट कर रहा हूँ। और ड्राइवर को हमने बोला कि गाड़ी यहाँ से निकाल। तो हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम मारुति वैन को यू टर्न कर सके, ठीक है। तो हमने, ड्राइवर ने गाड़ी का रिवर्स गियर डाला, और रिवर्स मतलब इतनी यहाँ से लेके बस इतनी जगह होगी, इतनी 4 फुट की, जितनी जगह में गाड़ी खड़ी हो सकती है 4-5 फुट की। तो वो यू टर्न की जगह नहीं थी, तो उसने रिवर्स गियर डाला और वो लगभग 100 मीटर गाड़ी का वो पीछे लेके आया रिवर्स में। और जैसे ही उसको जगह मिली यू टर्न करने की, उसने ब्रेक लगाई कि अब मैं यहाँ से यू टर्न करूँगा। हमारी गाड़ी की ब्रेक लगी, और इमेजिन करिए, सपोज यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू हुई थी और यहाँ तक हम रिवर्स करके लेके आए, यहाँ से लेके आगे जहाँ पे हमारा लाइटें वाइटें सेट सब कुछ लेपल सब वहीं पड़ा हुआ है, अभी झोपड़ी में पड़ा हुआ है, वो सारी की सारी जगह कट के गंगा के अंदर। वो पानी नीचे से कटाव करता रहता है ना मिट्टी का, तो जहाँ पे हमारी और हमारे टायर से 1 फुट आगे से लेके और जहाँ पे हम बैठे हुए थे, सारी की सारी ज़मीन कट के गंगा के अंदर। कह रहा, बाबा कहता, देखा बाबा कह रहा था ना कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चले, बच गए। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह हम बाबा को फिर मिलने के लिए आए। बाबा ने बोला अब बाबा जा रहा है, कल सुबह आना। तो रात को 12:30-1 बज गए थे, तो हमने कहा चलो पैकअप करते हैं, अब तो वैसे भी सब कुछ लाइटें वाइटें तो चली गई हैं अंदर, अब कल सुबह हायर करेंगे या दिल्ली से मंगाएंगे, अपने हेड ऑफिस से मंगाएंगे, और लाइटें और माइक भी चला गया था, क्योंकि सब पानी के अंदर, सब लाइटें वाइटें, सब बैटरी वैटरी सब गया, बस कैमरा मेरे हाथ में रह गया था, कैमरा और ट्राईपॉड, क्योंकि असिस्टेंट को ने ट्राईपॉड बोल दिया था अपने साथ रख लो, तो वो बच गया, बाकी सब गया गंगा में। उसके बाद बाबा ने मेरे को एक मंत्र दिया अगले दिन सुबह, और बोला कि जब तेरे को जीवन में लगे कि तू जिंदगी में जीवन में मायूस हो गया है, जीवन में कुछ नहीं बचा तेरे पास, ख़त्म है, तेरे को आत्महत्या करने का दिल करे, मरने का दिल करे, ये मंत्र जाप कर लियो। बाबा कहता तेरे जीवन में जहाँ पे भी होगा ना, बाबा धरती पे हो ना हो, बाबा तेरे जीवन में आ जाएगा तेरी हेल्प के लिए। मैं घर आया, मैंने अपनी मॉम को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, और एक गौरी बाबा ने मेरे को मंत्र दिया। तो फिर मेरी मॉम ने मेरे को बोला कि बेटा वो मंत्र को कभी जाप मत करना, क्योंकि कि इट्स ईजी टू कॉल देम, वो आपके शरीर में एंटर, क्योंकि उनमें पावर्स हैं ऐसी कि वो आपके शरीर में एंटर कर जाएंगे, लेकिन आप निकालोगे कैसे उसको, अगर वो आपके जीवन में घुस गया। तो कह रहे कभी मंत्र का जाप मत करियो, कभी मत करियो। तो मैं अब तो खैर मैं भूल भी गया वो मंत्र को। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जब मैंने देखा कि अगर मैं 5 मिनट देर कर देता तो मैं भी गंगा के अंदर था, ख़त्म था। और अंधेरा इतना था कि मतलब एब्सोल्यूट पिच डार्क, रात को 12:30 बजे, और छोटी दिवाली की रात, छोटी दिवाली की रात, हाँ अमावस की रात। सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच आई हैव सीन। आई लिटरली, इसको और क्या बोलेंगे, मैंने अपनी मौत देखी अपने सामने। 5 मिनट की देरी से पहले अगर मैं 5 मिनट देरी करता तो मैं ख़त्म था। मैं दिस इज़ द फिल्म विच आई गॉट अ नेशनल अवार्ड। 1 सेकेंड पॉज करिएगा अभी।
दिस इज बेसिकली ऑन द 6 women. ये टॉयलेट एक प्रेम कथा जो आई थी फिल्म 2000 अक्षय कुमार की 2016 में, 2015 में मैंने उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी फिल्म बना के, डॉक्यूमेंट्री बना के नेशनल अवार्ड मिला था इसको 2015 में. इट्स बेसिकली ऑन द 6 women, जो औरतें जिनके घर में शादी के बाद ससुराल में शौचालय नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे, वो अपना ससुराल छोड़ के मायके चली गई थी, और जब टॉयलेट बना तो फिर ऑन कैमरा हमने उनका गौना करवाया और वो सब करवाया और एक्टिंग करवाई, उनको वापस घर लेके आए, वो सब मतलब थोड़ा चीटिंग भी किया. लेकिन गौना होता है जब बेटी ब्याह के एक बार तो पहले ससुराल आ जाती है, ठीक है. उसके बाद फिर एक यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक कस्टम है कि वो टेक्निकली वो उसका ससुराल तब तक नहीं माना जाता जब तक कि वो रिविजिट नहीं करती. तो फिर वो अपने वापस मायके चली जाती है. फिर पूरा का पूरा जैसे गौना इज़ लाइक अनदर शादी. तो पूरा प्रॉपर बारात लेके, बाकायदा रिश्तेदारों को लेके हम फिर से रिश्तेदार जाते हैं और उसको फिर से इज्जत के साथ दोबारा लेके आते हैं. उस दोबारा लाने के रिचुअल को गौना बोला जाता है. हाँ, लेकिन रह तो सकते नहीं पति पत्नी के, तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं, शादी हो गई सब. अब लेकिन जब आप 18 साल के हो गए, जो भी एज डिसाइड, उसके बाद वो गौना करा, उसके बाद गौना कराया जाता था, उसको वापस लाया जाता था और वो दूसरी शादी की तरह ही मतलब फंक्शन. So this is it. Now if anyone has any queries, any अगोरी वाला बेटा इतना काम किया हुआ है मैंने, कितना डालूंगा, आप देख देख के परेशान हो जाओगे. अगोरी वाला मेरे लैपटॉप में है, अगर आपको बोलेंगे मैं सर को भेज दूंगा, विशाल सर को, वो आप बाद में देख लेना, ठीक है. मैं सब लिंक भेज दूंगा, विशाल सर को मैं भेज दूंगा अगोरी वाला. गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ परवेज. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका फोकस जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है. तो जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में भी है, डायरेक्शन में भी है, कैमरा में भी है, तो वो अपना मेन फोकस कैसे क्लियर करे? एक समय में एक काम, एक समय में एक काम करिए, सब कुछ करिए. मैं करने को मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप एक समय में एक काम करेंगे, वही घोड़े वाली बात, फोकस आपका क्लियर रहेगा. जब डायरेक्शन कर रहे हैं तो डायरेक्शन ही करिए, कैमरा कर रहे हैं तो अगर आप कैमरा के साथ अब सोचें कि मैं इसको फिल्म को डायरेक्ट भी करूं, और इस एज में अभी यू आर बिगिनिंग ऑफ लाइफ, अब प्रोफेशनल लाइफ, अभी आप सब कुछ करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एक एक करके करिए, एक समय में एक काम करिए. एक फिल्म शूट कर रहे हैं तो उसी फिल्म पे शूटिंग करिए. ये डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट करिए. ये मत सोचिए कि जी मैं कैमरा भी कर लूँगा, मैं डायरेक्ट भी कर लूँगा, फिर वो ऐसा रायता फैलेगा कि वो ना वो डायरेक्शन अच्छी रहेगी ना वो कैमरा अच्छा रहेगा. हाँ, समय के साथ ओवर द ईयर्स जब आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. लेकिन अभी इस उम्र के दराज पे जिस पे आप हैं, अभी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं अभी आप लोग, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सब कुछ करें. एक समय में एक काम करिए, और जो करिए उसको मन लगा के अपना बेस्ट शॉट दीजिए. उसमें कमी नहीं होनी चाहिए. कैमरा करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, लाइटिंग में, एंगल में, साउंड में, किसी में भी. डायरेक्शन करिए तो डायरेक्शन में भी फिर फुल फ्लेज्ड. अब मैं हूँ, आज की डेट में मेरे को 27 साल हो गए हैं, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, जो मैं आपको करने को मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद करता हूँ. मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं एडिट भी करता हूँ, मैं कैमरा भी करता हूँ, मैं सब कुछ मेरे को आता है क्योंकि मुझे पता है. लेकिन आज 27 साल के बाद में मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं आपकी उम्र में होता और मैं सब कुछ करना चाहता होता, इच्छा सब कुछ होती है, सब कुछ करने की होती है. आपकी उम्र ऐसी है
कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, तो फिर वो होता नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी तो आपने इंडस्ट्री को खुल के देखा भी नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्शन के अंदर जाओगे ना, डायरेक्शन के अंदर अभी एज आई टोल्ड यू, सिनेमा है, फिल्म, ठीक है, फीचर फिल्म है, एड फिल्म है, देयर आर लाइक प्रहलाद कक्कड़ टाइप। प्रहलाद कक्कड़ खाली एड फिल्म के लिए माना जाता है ना। क्या प्रहलाद कक्कड़ की आज तक कोई फीचर फिल्म देखी है किसी ने? नहीं देखी होगी, क्योंकि फीचर फिल्म, क्या उसको मौका नहीं मिलता प्रहलाद कक्कड़ को? लेकिन ही इज अ एड फिल्म मेकर, एड फिल्म, एड मैन कहते हैं। प्रहलाद कक्कड़ इज कॉल्ड एड मैन, वो एड ही करता है। तो फोकस, उसका विजन, उसका फंडा क्लियर है कि मुझे यही करना है। ये क्या नाम है डायरेक्टर का, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन इज अ वेरी पिक्यूलियर, वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, जो कि हर किसी को शायद समझ नहीं आएगी। वो गाली गलोच, ये वो सब, लेकिन वो उसका फोटे है। अनुराग कश्यप की फिल्म आपको पहला शॉट देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये अनुराग कश्यप की डायरेक्शन है, यू नो। तो हर किसी का सिग्नेचर होता है, स्टाइल होता है एक, तो वो स्टाइल तो डेवलप करो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर की तरह स्टाइल डेवलप करो, चाहे एज एडिटर डायरेक्टर करो, चाहे एज एडिटर करो। यू शुड हैव अ स्पेशलाइजेशन। उसके बाद तो फिर कोई आपको मना थोड़ी कर रहा है करने को, कोई रोक थोड़ी रहा है। पहले अपना सिग्नेचर बनाओ, पहले अपना स्टाइल बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसके कारण आप जाने जाओगे, आप इंडस्ट्री में फेमस होगे कि ये इस बंदे को ये काम दिया जाए तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। वो बनाओ, पहले अपनी वो स्पेशलिटी बनाओ। थोड़ा सा लाउड हो प्लीज। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा एक ही चीज़ पे फोकस करो, पर जो आज की इंडस्ट्री है वो मल्टीटास्कर को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे अगर हमारे अंदर एक ही ट्रेट हुई तो? देखिए, मल्टीटास्किंग आपसे अभी फ़िलहाल, अगर आप एज अ, अभी आपको क्या लगता है कि आपको छूटते साथ ही, आप सपोज आप कैमरा में इंटरेस्टेड है, लेट्स से, ठीक है, तो आप किसी भी चैनल में ज्वाइन करती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करती हैं, तो वो आपसे अभी शुरुआत में एज अ इंटर्न काम कराएंगे, ठीक है। इंटर्न को सब कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आप नहीं भी चाहेंगे ना। और मैं हिंदी में बोल देता हूँ, इंटर्नशिप को हम लोग बोलते हैं, जो मेरे साथ में भी इंटर्न्स आते हैं, वी कॉल इट रगड़ा टाइम। ओके, मैं आपको रगड़ा टाइम बोल रहा हूँ। तो जो रगड़ा टाइम होता है ना, 1 साल का फील्ड में जब आपको इंटर्नशिप मिलेगी, उसमें आपको हर चीज़ में रगड़ा लगाना पड़ेगा। मैं आपको अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बताऊं। मेरे जब जीवन में पहली बार शूटिंग पे मैं गया था, अब तो वो कैमरामैन जिनके साथ मैं काम करता था उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने सबसे पहले, मैं रगड़ा से बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो गुटखा खाते थे। तो उन्होंने पहले दिन शूटिंग का मेरे साथ कंधे पे हाथ रखा, हाँ आ गया बेटा, हाँ मैं आ गया, इधर आ, कंधे पे हाथ रख के गए, टॉयलेट में लेके गए, टॉयलेट में ले जाके गुटके की थूक फेंकी और बोले इसको साफ करके आ। दैट्स कॉल्ड रगड़ा। बाद में उन्होंने मुझे समझाया, मैं बड़ा खुंदक में, मैं पढ़ा लिखा आदमी, और मेरे फादर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड बंदे हैं, और भगवान की दुआ से पैसा भी है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं क्या तेरी थूक साफ करने के लिए आया हूँ? बड़ा गुस्सा आया, बहुत खुंदक आई, सच बता रहा हूँ, बहुत खुंदक आई मेरे को उस टाइम कि मैं यहाँ मैं काम सीखने आया हूँ या आपके गुटके की थूक साफ करने के लिए आया हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, अंदर गुस्से को अंदर दबाया, थूक साफ करी, उसकी वॉश बेसिन को साफ किया, साफ करके बाहर आया, बाहर आके अपना, आई यूज्ड टू स्मोक, सो मैं सिगरेट पिया, एक गुस्से में अपना सारा गुस्सा निकाला और अंदर जाके सेट पे जाके बैठ गया। सारा दिन उन्होंने मुझे कुछ काम नहीं दिया, सारा दिन मैं सिर्फ एक चेयर पे बैठा रहा, देखता रहा सेट पे क्या हो रहा है। और ये शूटिंग थी मनाली के अंदर, सौदागर फिल्म, शायद आपको याद हो, दिलीप कुमार की सौदागर फिल्म, राइट, इलू इलू का सॉन्ग का शूट था ये। तो इस सॉन्ग को शूटिंग के लिए मैं गया था असिस्ट करने के लिए। तो जब शाम को वो आए मेरे पास,
आके मेरे गुरु, मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, कहते बेटा मेरे को पता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता है कि शायद मैंने तेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तेरे अंदर कितना पागलपन, कितना जुनून है काम सीखने का, कितना जुनून है, बस मेरे को तेरा जुनून चेक करना था। उसके बाद जीवन में कभी भी मेरे को उन्होंने कभी अपना मतलब अपने झूठी प्लेट तक नहीं उठाने दी। तो बात वही है कि जब रगड़ा लगाया जाता है इंटर्नशिप में, तो आप बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स। आपसे कुछ भी कराया जाएगा, आपको 12-12, 14-14, 15-15, 16-16, 18-18 घंटे डबल शिफ्ट कराई जाएगी। 1 किलो कलर बार लेने भेज दिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्स ट्रीटमेंट, क्योंकि कि आपको सिल्वर की थाली में, हाँ अनलेस अनटिल आपके माँ बाप भाई बहन कोई ऐसे मीडिया में बड़े चैनल में हैं, तब तो आपको हाँ चांदी की थाली में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि कि मीडिया के अंदर क्या हर फील्ड के अंदर होता है, फेवरेटिज्म कहाँ नहीं होता, फेवरेटिज्म हर फील्ड के अंदर होता है, मीडिया में भी है, ठीक है। तो जो कपूर्स हैं, कपूर्स के बच्चों को, और ये जो राज कपूर फैमिली है, और जो भी फिल्म स्टार्स की फैमिली है, श्रीदेवी की बेटी, एक आई एम सॉरी आई डू नॉट लाइक हर एट ऑल, राइट, उसकी एक्टिंग, उसको एक्टिंग के नाम पे ये नहीं आता, लेकिन श्रीदेवी की बेटी को काम क्यों मिल रहा है? आज की डेट में लायरा का एड फिल्म कर रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है वो आज की डेट में श्रीदेवी की बेटी, क्यों? जस्ट बिकॉज वो एक तो श्रीदेवी की बेटी है और उसके हाथ, उसके सिर के ऊपर बोनी कपूर का हाथ है, तो फेवरेटिज्म है। अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ, आपका कुछ माई बाप का आपके सिर पे हाथ है, तब तो आपको वो रगड़ा पट्टी टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, वरना सभी को रगड़ा निकालना पड़ेगा, रगड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। Good afternoon, sir. I'm Dia. My question is, you talked about the Nirbhaya case, right? That you worked on it. What I? You said that you worked on the Nirbhaya case. Yes. So I wanted to ask, first of all, was it a documentary? इट वॉज बेसिकली, वैसे पब्लिकली मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो एक्चुअली निर्भया नाम उसके सही नाम को छुपाने के लिए दिया गया। उसका सही नाम एक्चुअली उस बच्ची का नाम था ज्योति, ठीक है। तो बेसिकली निर्भया के ऊपर पूरे उसके ये रेप केस के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, उस सारे के ऊपर बीबीसी की एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने बनाई थी। तो निर्भया नाम तो उसको दिया गया है ताकि उसका मतलब रेप विक्टिम का, जैसे हम नाम लेते नहीं हैं, चेहरा भी नहीं दिखाते हम लोग, ठीक है। अभी पता नहीं आप बोल रहे थे कि इंडियन लॉ बेकार है, कि जो दोषी है लड़के हैं उनको तो खुल के उनके चेहरे दिखाए जाते हैं, लेकिन रेप विक्टिम का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जाता? रेप विक्टिम का इसलिए चेहरा नहीं दिखाया जाता बिकॉज वो ऑलरेडी बेचारी समाज में, रेप के ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी फिल्म आपने देखी है कि रेप जिनके साथ, जिन भगवान ना करे किसी बच्ची के साथ ऐसा हो, उनके साथ समाज ऑलरेडी उन लोगों को एक मतलब जैसे कि उनकी गलती है, उनको नीचे निगाह से देखते हैं। तो जब नीचे से निगाह से देखते हैं तो मीडिया का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें एटलीस्ट इतनी इज्जत तो दें कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना करें। ज्योति के केस में तो बहुत ही बुरा हुआ था ना। आई डोंट नो आप लोगों को निर्भया का केस पता है कि नहीं पता, बट जिस तरीके से फिजिकल टॉर्चर हुआ, मतलब एक तो रेप होता है और एक फिजिकल टॉर्चर, और वो भी इतनी हद तक इनह्यूमन, इट वाज इनह्यूमन। उसकी अंतड़ियां तक बाहर आ गई थी, सब मतलब बुरा हाल, उसकी बॉडी उसको छोड़ा ही नहीं था कि उसको जिंदा बच सके, वो बयान दे सके, वो बयान दे भी नहीं पाई। वो उसके बस 2 शब्द थे, मम्मी मुझे बचा लो, दैट्स ऑल। एम्स में जब उसको भर्ती कराया गया है, उसका बस इतना शब्द निकले हैं उसके बच्ची के मुंह से, और कुछ नहीं बोल पाई, वो मर गई। तो इस तरह के सब्जेक्ट को उठाना भी हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी है, एज अ मीडिया, एज अ जर्नलिस्ट, इनकी आवाज़ उठाना, बताना। सो दैट वाज अ लॉजिक
Yes, so that was my question, that this information is highly confidential. So how do you like get them to talk about it? Well, it is very difficult. I completely agree with you. It is very difficult. जब हम उसके भाई का इंटरव्यू कर रहे थे, उसके दोस्त जो उसका जो दोस्त साथ में था, जो सर्वाइवल, ठीक है, जो बस में जो एक और लड़का भी था ना, तो उन सबको मनाना, कैमरा के सामने लाना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. लेकिन गंदा है पर धंधा है, करना है तो करना है. So thank you so much, Andis sir, for such an insightful session. And I'm sure our students have learned so much through sir's experience and whatever practical knowledge he has given us in such a limited time. Now, before we end the session of SOP 2023, I request Head DME Professor Dr. Susmita Bala to please deliver the vote of thanks and bring this amazing session. Okay, I would request. Okay, so both ma'am and sir will give the vote of thanks. That's even special. अच्छा वो तो दो लोग दे देंगे. See, it depends on the personality जिसके बारे में और जिनको vote of thanks देना है. तो मैं अकेला मैं नहीं समझता हूँ कि मैं काबिल हूँ उनको vote of thanks देने के लिए, इसलिए मैं मैम को साथ में लेके आया हूँ. Right? See, before we say something, one thing, whenever you students come to this kind of session, every student should have a writing pad and a pen with you, right? And I'm sorry, मुझे यहाँ पे बोला गया vote of thanks देने के लिए. Before that, I'm saying the kind of questions you should have asked is to do with your subject, knowledge, frames, shots, camera, light, angles, so many things, you know, which you are studying, right? I'm like thankful to him. He has shared his, lifetime achievements, experiences. But along with that, he has also talked about the technical things, which nobody questioned, right? And believe me, this kind of personalities, experiences, you won't get on a regular basis. You know, you बोलते हैं ना कि encash करना, you should have encashed this session. Anyway, on behalf of DME Media School, I thank you, Indrish, for such a wonderful session. I don't know about the students, but I myself enjoyed a lot, learned a lot. I wish, and I'll request Amrish sir to call you once again for the faculty members, right? Because I need to learn a lot from your life experience and life shots, the kind of experience you have got while shooting. You know, these are as you mentioned, you are a person who works behind the camera. But behind the camera, when we see the show reels and all, we cannot see those experiences which you have experienced in real life, right? Me and Shushmita ma'am, on behalf of DME Media School, we thank you so very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.